کے تحت 51,000 سے زیادہ افراد کو تقرری انعامات تقسیم کریں گے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقرری انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم اس موقع پر خطاب بھی کریں گے۔ ملک بھر میں 37 مقامات پر روزگار میلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر اردن کی قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ قرارداد کے حق میں 120 جبکہ اس کے خلاف 14 ووٹ پڑے۔ رائے شماری میں 45 ملکوں نے حصہ نہیں لیا۔ ہندوستان نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ ہندوستان نے قرارداد پر دہشت گردی کی مذمت کی۔ ہندوستان نے دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر زیرو ٹالرنس اختیار کرنے کی بات کہی ہے۔ ہندوستان نے غزہ کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنے کی بات کہی۔ In a world where differences and disputes should be resolved by dialogue, this august body should be deeply concerned at recourse to violence. That too, when it happens on a scale and intensity that is an affront to basic human values. Violence as a means to achieve political objectives damages indiscriminately and does not pave the way for any durable solutions. The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality, or race. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep aside differences, unite and adopt a zero-tolerance approach to terrorism. Mr. President, casualties in the ongoing conflict in Gaza are a telling, serious and continuing concern. Civilians, especially women and children, are paying with their lives. This humanitarian crisis needs to be addressed. We welcome the international community's de-escalation efforts and delivery of humanitarian assistance to the people of Gaza. India too has contributed to this effort. اور ضلع کلگام کے دینیو کنڈی برگ کا دور افتادہ علاقہ اور یہاں درگٹن وارڈ نمبر 3 آج بھی بجلی سے محروم ہے۔ علاقے میں اگرچہ کچھ سال قبل ایک اسکیم کے تحت بجلی کے کھمبے اور تار بچھائی گئی، تاہم ابھی تک معاملہ جوں کا توں ہے۔ پورا علاقہ بجلی سے محروم ہے۔ مقامی لوگوں نے ایل جی انتظامیہ اور متعلقہ محکمے سے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر محکمہ رورل ڈیولپمنٹ و پنچایت راج کلگام نے معاملہ پہلے ہی زیر غور لایا ہے۔ انہوں نے علاقے میں جلد بجلی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ہم کم از کم گجر ہے، ہم 35 گھر ہے بغیر بجلی کے، وداؤٹ الیکٹرکسٹی ہم ہیں 35 گھر۔ بابا آدم کے وقت سے آج تک ہم نے بجلی کا نام و نشان نہیں دیکھا۔ یہاں ونٹر میں بہت برف پڑتی ہے، ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم ایس ڈی ایم تک بھی پہنچے، ہم کلگام کے ڈی صاحب تک بھی پہنچے کہ ہمارے پاس ہمارے یہاں الیکٹرکسٹی نہیں ہے۔ 5 سال پہلے اس میں یہ تار پول تھا، لیکن اس کے بعد کوئی اس میں ہمیں پاور شاور کے نشان نہیں ہے۔ بلاک ڈی کے مرگ کا پنچایت ہے یہ درگڑن، اس میں گجر بستی ہے، وارڈ نمبر 3 میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت پر پچھلے سال ہم نے وہاں پر گرام سبھا کی تھی، اور انہی کی ہدایت پر جو ہے سارا گرام سبھا کا پیسہ جو ہے 23 لاکھ روپیہ جو ہے پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے بجلی کے لحاظ سے کافی سفر کر رہا ہے، اور ان کی ٹینڈرنگ ہو گئی ہے، الاٹمنٹ ہو گئی ہے، خالی انسپیکشن کا ایک جو ہے لیول ہے وہ باقی ہے۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ دسمبر کے اینڈ تک وہاں پر جو ہے ٹرانسفارمرز، ایل ٹی ایچ ٹی امپرومنٹ جو ہے، لائن امپرومنٹ جو ہے، بجلی جو ہے وہاں پر پہنچ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنا خرچہ کیوں؟ کیا یہ سرکاری خزانہ عامرہ پہ صرف بوجھ ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہے؟ اور یہ جو پول اور تار سالوں سے یہاں پڑے ہیں، کیا اس کا کوئی پرسان حال نہیں؟ ان سبھی باتوں کا جواب جو ہے انتظامیہ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضائع نہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ ان کو جلد سے جلد بجلی جو ہے وہ بحال کی جائے، ان کو بجلی کی جو ہے اسے روشناس کیا جائے۔ ظہور رضوی، نیوز 18 نیٹ ورک، بہت رگڑن کلگام۔
जम्मू कश्मीर के सब जिला त्राल के गांग इलाके में मौजूद चनार बाग में आज भी 110 के करीब चनार मौजूद हैं, लेकिन सरकार की अदम तवज्जोही की वजह से दिन ब दिन इस बाग में चनार कम हो रहे हैं। मशहूर तारीखदान डॉक्टर निसार अहमद तराली ने बताया कि इस बाग में श्रीनगर के नसीम बाग से ज्यादा चनार मौजूद हैं, लेकिन इन्हें महफूज करने के लिए सरकार को इंतजाम करने चाहिए। अगरचे महकमा फ्लोरिकल्चर ने यहां एक पार्क भी बनाई थी, लेकिन वो भी अब खस्ता हाली का शिकार है। इलाके के लोग कई दहाइयों से इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद यहिया नक्काश ने बताया कि वो बाग को महफूज करने और इस इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए महकमे सियाहत के साथ मसला उठाएंगे। चनार बाग के इर्द गिर्द तकरीबन 72 चनार एक ही जगह मौजूद हैं। इसके अलावा अगर गाँव में देखा जाए तो सारे गाँव में तकरीबन 110 चनार है। देखा गया है कि जो हब्बक नसीम बाग है वहाँ पर सिर्फ 100 चनार कश्मीर में मौजूद हैं, लेकिन त्राल की जो ये गांग इलाका है इसमें तकरीबन 110 चनार मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस गाँव की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि कई साल पहले फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने उसकी एक मामूली फेंसिंग की थी, लेकिन उसके बाद जो बेदरे चनारों की कटाई हो गई और जिनको कभी इन चनारों को आग लग गई और कभी बर्फ की वजह से इनकी टहनियाँ गिर गई, उससे बहुत से चनारों को नुकसान उठाना पड़ा। और ये जो चिनार है ये एक रॉयल स्पीशी है, इसको प्रिजर्व करना गवर्नमेंट का अव्वलीन जो है इसमें तरजीह बुनियादों पर इसको किया जाता है और इसको प्रिजर्व करने की हमें भी ज़रूरत है। जब तक चिनार के जो पेड़ के पत्ते हैं नीचे गिरकर अपना एक मुनफरिद जो है मंजर बताता है। तो इस सिलसिले में ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी पहले भी बात हो चुकी है और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात हुई है। इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर विल बी टेकिंग ड्यू केयर ऑफ इट और आप देखेंगे एक विजिबल चेंज देखेंगे जल्द वो उन चिनारों को, और ताकि वो लोग जो हैं उसमें जाएं और सैर व तफरीह के लिए ही इसको अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए। टनवर के काजीपुरा से ताल्लुक रखने वाली इंटरनेशनल स्कीयर शाबिस्ता शब्बीर को फौज की चनार कोर की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया। श्रीनगर में मुनक़िदा एक तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन्हें नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड पर शाबिस्ता शब्बीर और इनके वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। फौज के चनार कोर ने कामयाबी हासिल करने वाली कश्मीरी खातीन के एजाज में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी थे। चनार कोर के कमांडर और दीगर आला फौजी अफसरान मौजूद थे। कश्मीर में नुमायां खिदमत अंजाम देने वाली खातीन को एजाज से नवाजा गया। इस तकरीब का मकसद उन ख्वातीन को इज्जत देना था जिन्होंने कश्मीर की खुशहाली में अपना किरदार अदा किया है और नारी शक्ति के हकीकी औसाफ को जाहिर किया है। टनवर के काजीपुरा में शाबिस्ता शब्बीर ने न्यूज 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुसैन से खास बातचीत की। चिनार कोर की तरफ से जो अवार्ड मिले हैं नारी शक्ति अवार्ड, और उस सिलसिले में शाबिस्ता शब्बीर को भी अवार्ड से नवाजा गया है। हम उनसे सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से आपको मुबारकबाद है और आपको ये अवार्ड मिला है, आप कितनी खुशी हुई आपको? जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जब आते हैं तभी जाके हम लोग जो है कहीं दिख जाते हैं। आर्मी गुडविल हाई स्कूल ज़रन जो है, पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से जो है मुझे ये मौका मिला और मुझे ये अवार्ड मिला। और सेकेंडली मेरे पेरेंट्स जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है लाइफ के हर एक मोड़ पे, चाहे मेरा कुछ भी रहा हो, उन्होंने हमेशा उसमें साथ दिया है। अभी आप देख रहे हैं कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है उभर के आ रहा है। स्पेशली हम लड़कियों को देखें तो लड़कियां आज बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। कल भी जब वो अवार्ड मैं वहाँ पे रिसीव कर रही थी, मेरे अलावा भी वहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी। इनफैक्ट कुछ बुज़ुर्ग भी थे वहाँ पे जिनको अवार्ड मिला। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं जिनकी वजह से उनको भी अवार्ड्स मिले हैं। वहाँ पे मैं ये देख के भी बहुत खुश हुई कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो है उनको भी जो है वो अवार्ड से उनको नवाजा गया वहाँ। तो सिकिंग के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि सिकिंग में ही आपको अवार्ड मिला है, तो अब मौजूदा दौर में इस मंजरनामे को कैसे देखते हैं और कितनी ज़रूरत है अब मज़ीद सिकिंग को डेवलप करने के लिए ताकि इसमें भी लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ?
جی اسکینگ کا تو پہلے اتنا تھا نہیں یہاں پہ، اسپیشل لڑکیوں میں تو اتنا تھا نہیں، اب دھیرے دھیرے لیکن لڑکیاں بھی اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکینگ میں جو بچے ہیں وہ کافی دور تک جا رہے ہیں. میں اپنی ایگزامپل دے دوں، 2018 میں میں نے جو ہے انڈیا کو ریپرزینٹ کیا ایران میں، لڑکیاں اور زیادہ پارٹیسپیٹ کریں گی. جیسے ہمیں کل دیکھا گیا، میں بھی کچھ لڑکیاں ایسی ہو جو ہمیں دیکھ کے وہ بھی انسپائر ہو، وہ بھی آگے چل کے لائف میں کوئی ایسے کوئی سپورٹ کو چنے یا کسی بھی فیلڈ میں جائے وہاں ایکسل کریں. تو ایسے ایونٹ جو ہونے چاہیے، اور آرمی جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ایسی ایونٹس آرگنائز کرتی رہتی ہے. پرانے دور میں اور اس سے پہلے جب ہم دیکھتے تھے، کیونکہ لڑکیاں خوف محسوس کر رہی تھی اور کچھ ہنڈرنس بھی سامنے آ رہی تھی گھر والوں کی طرف سے بھی. اب انفراسٹرکچر وہ بنایا جا رہا ہے، اسٹیڈیمز بنائے جا رہے ہیں اور سرکار بڑی سنجیدہ ہے اس میں. آگے آنا چاہیے. اوبیسلی میرا میسیج یہی رہے گا لڑکیوں کے لیے کہ وہ آگے آئے. ان کا جو ان کا لمٹ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچن میں بیٹھی رہے، وہاں پہ کام کرتی رہے. میں چاہتی ہوں وہ باہر نکلے، لائف کو ایکسپلور کرے، کیونکہ لائف صرف ایک بار ملتی ہے. اور میں چاہتی ہوں وہ اپنا نام روشن کرے، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں گلمرگ سے منیر حسین خرہ. کشمیر ہینڈلومز اینڈ ہینڈی کرافٹس کے ڈائریکٹر محمود احمد شاہ نے گاندھی شلپ بازار کشمیر ہاٹ میں دستکاری اشیاء کی 10 روزہ نمائش اور فروخت کا افتتاح کیا. جوائنٹ ڈائریکٹر پرویز سجاد غنائی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر رفیق احمد، راجہ راہل رشید اور دیگر حکام نے شرکت کی. یہ نمائش ڈیولپمنٹ کمشنر کے دفتر دستکاری، وزارت ٹیکسٹائل اور حکومت ہند کی طرف سے اسپانسر کی گئی ہے. ملک بھر کے ممتاز مقامات پر گاندھی شلپ بازار کا انعقاد مختلف شہروں اور میٹروز میں کیا جا رہا ہے. کاریگروں کے لیے گھریلو مارکیٹنگ کا پلیٹ فارم اور ان کی دھاندار دستکاری، تخلیقات، روایتی فنون اور ملک کے ثقافتی ورثے کی نمائش ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ سینٹرل مارکیٹ یہ جو کشمیر ہاٹ ہے اس کو فنکشنل کریں اور اس کو یہ ایز پلیٹ فارم پروموٹ کریں فار آرٹیزنس. اور اس سال کافی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوئی اور آنے والے دنوں میں اور بھی جو ہے ہم یہاں پہ ایگزیبیشنز کر رہے ہیں، ناٹ اونلی ان سری نگر بلکہ گلمرگ میں، پہلگام میں، سونمرگ میں. تو کوشش یہی ہے کہ میکسیمم جو ہے اپارچونیٹیز ہم مہیا کریں آرٹیزنس کو تاکہ وہ اپنا ہینڈی کرافٹس جو ہے بیچے. ہم نے یہاں پہ گاندھی شلپ بازار ڈسٹرکٹ لیول کا منعقد کرا ہے، جس میں ہم نے 50 آرٹیزنس کو پورے ہندوستان سے مدعو کیا ہے کہ وہ اپنے جو ہینڈی کرافٹس ہیں ان کو یہاں پہ ان کی نمائش کریں اور ان کی سیل کریں. اس سے پہلے بھی جو ہم نے کرا تھا وہ نیشنل لیول کا تھا، آج جو ہے یہ ڈسٹرکٹ لیول کا ہے. منشیات کے خلاف مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے کٹھوا پولیس نے پولیس چوکی ہتلی کے تحت بیدیا پاٹن علاقے سے 2 منشیات اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے. ان کے قبضے سے تقریباً 400 گرام چرس برآمد ہوئی ہے. دونوں نوجوانوں کو کٹھوا سے گرفتار کیا گیا ہے. دونوں سوار تھے، موٹر سائیکل اور پنجاب سے آ رہے تھے. پولیس چوکی پر تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے چرس برآمد ہوئی ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر مزید کارروائی شروع کر دی ہے. اور فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، جلد حاضر ہوں گے. ہاردک پانڈیا کے لیگامنٹ میں لگی چوٹ، انگلینڈ، سری لنکا اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف نہیں کھیل پائیں گے میچ. بنگلہ دیش سے میچ کے دوران ہوئے تھے چوٹل. پردیش میں بڑھتے نشے کے معاملے کو لے کر بھاجپا نے سادھا سکھو سرکار پر نشانہ. ودھائک ستپال ستی بولے نشہ کاروبار پر نکیل کسنے میں سرکار ناکام. انترراشٹریہ کلو دشہرا اتسو کا چوتھا دن استھائی شیوروں میں ہو رہی دیوی دیوتاؤں کی پوجا. بڑی سنکھیا میں پہنچ رہے شردھالو. شام کو رنگارنگ کارکرموں کا سلسلہ بھی جاری. دھرمشالہ میں کل ہونے والے آسٹریلیا بنام نیوزی لینڈ کرکٹ میچ کی تیاری پوری. دونوں ٹیم آج نیٹ پر بہائیں گی پسینہ. NIT میں نشے کے سیون سے چھاتر کی موت کے بعد جاگا پرشاسن. حمیرپور میں نشے کے کاروباریوں پر پولیس نے کسی نکیل. 2 دنوں میں ہی 1 درجن نشہ کاروباریوں پر کی کارروائی. حمیرپور NIT میں فرسٹ ایئر کے چھاتر کی سندگدھ موت کا معاملہ. پولیس نے 2 دنوں میں 1 درجن نشہ کاروباریوں پر کی کارروائی. 1 کلو 491 گرام چرس کی ضبط. بدی میں نویش صلاحکار نے ادیوگپتی سے کی 1 کروڑ روپے کی دھوکہ دھڑی. نویش سے اچھے منافع کا دیا جھانسا. دلی کی ایک فرم میں ادیوگپتی نے لگائی اپنی جیون بھر کی پونجی. پیڑت کی شکایت پر پولیس نے معاملہ درج. اتراکھنڈ میں اس سال نہیں ہو پائیں گے نکائے چناؤ. شاسن نے راجیہ نروچن آیوگ کو بھیجی پریسیمن رپورٹ. رپورٹ کے آدھار پر آیوگ فروری تک تیار کرے گا ووٹر لسٹ.
देश को मिले जाबाज ऑफिसर्स। हैदराबाद में आईपीएस के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह। उपराष्ट्रपति ने केदारनाथ धाम पहुंचकर की बाबा केदार की पूजा अर्चना। देश की खुशहाली की कामना। आज बद्रीनाथ धाम जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आज से 3 दिन उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बद्री केदार धाम में करेंगी दर्शन और पूजन। माणा गांव जाने का ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। फाजिल कश्मीरी मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांदीलोरा टलमर्ग में बारामूला पुलिस की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। कौम की तामीर में पुलिस के किरदार पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी मेहमान खुसूसी थे। SDPO टलमर्ग अशफाक आलम, हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल जफर इकबाल, SHO टलमर्ग और दीगर अफसरान मौजूद थे। काफी तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। माहिरीन और बच्चों ने पुलिस की कुर्बानियों को याद किया। का जो रोल है इन नेशन बिल्डिंग, उसके ऊपर इन्होंने डिबेट की हुआ। हर एक ने अच्छी तरीके से बताया कि इनका रोल क्या है। यहाँ का जो माहौल आज पीसफुल हुआ है, इसमें पुलिस ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और कितना अच्छा रोल किया है। रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, तो सब हमारे ये बच्चे इससे अवेयर हो गए और ये डिबेट इस तरह से बहुत ही नहायत ही खुशगवार माहौल में ये यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम ऐसे ही डिबेट्स करें, ताकि तमाम हमारे जो बच्चे हैं दूर दराज इलाकों से जो आते हैं, तो उनको भी वो भी अवेयर हो जाए कि रोल ऑफ पुलिस क्या है। ये जाहिर सी बात है कि पुलिस एक बहुत अहम रोल अदा करती है हमारी सोसाइटी में। नो मैटर व्हाट द वेदर इज, नो मैटर इज इट डे और नाइट, पुलिस स्टेशन रिमेन्स ओपन फॉर 24 आवर्स फॉर पीपल। अगर पुलिस नहीं होती तो बहुत से एक्ट्स जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, इलीगल एक्ट्स, क्राइम्स बहुत कॉमन होते हैं हमारी सोसाइटी में। ये इन्हीं की वजह से है कि ये इनकी तादाद कम है और धीरे धीरे वी होप कि ये वैनिश ही हो जाए। हर किसी को पुलिस का रोल पता होना चाहिए, इसीलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ पुलिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। अगर कहीं पे हमारे समाज में कोई ऐसा इंसान है जो ड्रग्स सप्लाई करता हो, जो हमारे समाज को नुकसान दे रहा हो, तो वो उसको पकड़ सकते हैं और इनको उसको समझा सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। और हमारे समाज में कहीं पे क्या होता है कि कोई इंसान किसी इंसान पे अटैक यानी हमला कर सकता है, तो उसको पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि आपने क्यों किया, उसको सज़ा भी दिलाते हैं और ये हमारी बहुत मदद करते हैं। पुलिस की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है और आज जिस तरीके से कौम की तामीर में पुलिस का जो किरदार है उस पर जो सेमिनार हुआ है और इस बात से यहाँ पे बच्चे वाकिफ़ हुए हैं और क्योंकि हर जुर्म और हर क्राइम में जो उसके रोकथाम के लिए, उसके बचाव के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो पुलिस की जानिब से ही कोशिश की जा रही है और इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि बच्चों को पुलिस के किरदार और कौम की तामीर में उनके किरदार को बावर कराने के लिए, रोशनास कराने के लिए वक्त की ज़रूरत है। और क्योंकि बच्चे भी आज खुश असलूबी से जान चुके हैं कि पुलिस की खदमात जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और उनकी उस खदमात को याद रखना चाहे और उन कुर्बानियों को याद रखना चाहे जो पुलिस ने कौम की तामीर में दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और कुपवाड़ा जिले में गांव देहात को जिला सदर मकाम से जोड़ने के लिए सड़कों की तामीर हो रही है। इस सिलसिले में महकमे R&B की जानिब से 12 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रही एक सड़क का इफ्तिताह किया गया। TDC मेंबर एडवोकेट आमिना मजीद ने अफसरान की टीम के हमराह इसका इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि बाकी खस्ताहाल सड़क राब्तों को भी काबिल आमदोरफ्त बनाया जाएगा। लोगों ने DDC मेंबर और डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। चढ़ाई पे ये मोहल्ला रहता है बातरगांव में, मेन रोड पे ये बहुत ये बुरी कंडीशन थी इस रोड की। 2015 से ये इस रोड में फॉलो कर रहे थे मगर हुआ नहीं था। चलो अल्लाह की मदद से और मेरी कोशिशों की वजह से देन डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ पे थे, तो मैंने जो ही उनको अपनी रिकमेंडेशन दे दी तो उसने उसी दिन इस पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने की ये डायरेक्शन दे दी और ये इस बार यूटी कैपेक्स में हमें आ गया और इसमें 12 लाख रुपया कंक्रीट में रखा गया। इसके लिए मैं रिजिड है ये, इसके लिए मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, चीफ इंजीनियर, हमारे जो R&B के
यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, हमारे जो यहाँ वर्क सुपरवाइजर हैं, यहाँ कंसर्न AEE है, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी इसमें हमारी मदद की और इनका जो मसला था 2015 से ये रोड के लिए तरस रहे थे और ये आज हल हो गया। ये सड़क रबत आज बहाल गो वारिया मुश्किलात उसते वारिया काल पे ऐसे गो कम से कम 2 पे कोशिश करें यत वाद मगर चूंकि इसके वारिया जायन वीडियो ऑफिस सुशन कह जायत में इस वत ये वाताव चाहे पाई तकमिलस पे मगर क्या नत रीजन उस गसा कि ऐसे बे वत छना तो चूंकि यन पे मैडम जी बनाए इस गई मैडम जी निश इन को सड़ा हेल्प यत मज बिजली हन को बत हन को चूंकि अत को वरी वही मगर वरिस मज कर तीसा कोशिश कि बसित आज खुश कि गई वत। और सब डिवीजन गंदोह के ब्लॉक चिली के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इलाके के मकीनों ने महकमे रोड्स एंड बिल्डिंग गंदोह और मुतल्लका ठेकेदार के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। मकामी लोगों के मुताबिक जून 2021 में महकमे ने बित्यास से सुनवारा तक 4 किलोमीटर तवील सड़क की मैग्नेटाइजेशन का काम बंद कर दिया है। लोगों का इल्जाम है कि ठेकेदार को अगस्त 2023 को अलॉटमेंट हुई थी, लेकिन महकमे R&B गंदोह की गफलत की वजह से आज तक इस सड़क पर काम शुरू नहीं हो सका है। अश्विनी कुमार ने न्यूज 18 को बताया कि सड़क का बकिया हिस्सा मंजूर हो चुका है और ठेकेदार को अगस्त में अलॉटमेंट जारी कर दी गई थी, लेकिन आज तक उसने सड़क पर काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार ने 3 दिन में सड़क पर काम नहीं किया तो हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे अपने ठेकेदार के कार्ड के बारे में। और उन्होंने कहा कि एग्जे ने कहा है कि वो फिलहाल डोडा में ब्लैक टॉपिंग के एक और काम में मसरूफ है और 3 दिन के अंदर सड़क का बकिया काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। नायब तहसीलदार और SHO गंदोह ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। ब्लैक टॉप नहीं पड़ा है, जो थोड़े से पार्ट में ब्लैक टॉप पड़ा है उसमें भी खड्डे हो चुके हैं और ये जो सवारा से लेकर चिल्ली तक ब्लैक टॉप पड़ना था इसमें जून में टेंडर हुए हैं, लेकिन ठेकेदार ने टेंडर डाल के घाटे पे टेंडर डाल के अब वो इस काम को नहीं कर रहा है। जून में जब हमने बताया था कि तब ब्लैक टॉप का टाइम था, तब उसने टेंडर नहीं डाला। उसके बाद थोड़ा कुछ मटेरियल लाके रोड पे रख दिया और रोड इतना कंजेस्टेड कर दिया है जिसकी वजह से ड्राइवरों को गाड़ियां मतलब क्रॉसिंग हो ही नहीं रही। चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो इस रोड पे जो ठेकेदार ने मलबा डाला है और वहाँ यहाँ से निकल गया है, बैठा है कहीं दूसरे काम को शुरू किया है उसने, तो हम इंतजामिया से अपील करना चाहते हैं या तो इस मलबे को यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो हम खुद अपने खर्चे पे बुलडोजर लगा के इस मलबे को यहाँ से हटा देंगे। 1 हफ्ते का हम टाइम देते हैं, अगर 1 हफ्ते तक ये रोड इन्होंने क्लियर नहीं किया, साफ नहीं किया, इसमें ये जो साइडों पे ये डाला है, ये लुक इसके क्या बोलते हैं मटेरियल जो डाला है, पत्थर छोटे छोटे डाले हैं साइडों पे सोलिंग के लिए, या अगर इनको भी यहाँ से उठा देंगे तो उसी सूरत में कहीं गाड़ियां शाड़ी यहाँ से मतलब आगे पीछे जो है मतलब क्रॉसिंग हो सकती है। कमिश्नर सेक्रेटरी फूड सिविल सर्विसेज और कंज्यूमर अफेयर्स ने गांदरबल का दौरा किया। इन्होंने लोगों के मसाइल और खदशात का जायजा लेने के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट में एक अवामी दरबार की सदारत की। निचली सतह पर और अवामी खिदमात की मौसर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए DDC मेंबरान, काउंसलर्स, PRIs के नुमाइंदों के अलावा सरकर्दा शहरियों की शिरकत देखी गई। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल के हमरा DDC के वाइस चेयरमैन और सदर म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सरबराहान अपने शोबों से मुतालिक खदशात को दूर करने के लिए मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी ने पब्लिक आउटरीच कैंपों की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये इज्तिमाआत शहरियों को अपनी शिकायत और हुकूमत को मुनासिब जराये से इनके हल में तेजी लाने का प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी ने शिकायत को पूरी तरह सुनते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि इनके तहफुजात की अच्छी तरह से जांच की जाएगी और इनके हल के लिए मुताल्लिका महकमे को आगाह किया जाएगा। कुछ ऐसे साये भी पड़े हैं जिनका मुझे यहाँ जिक्र आज गांदरबल में हमारे बीच में हम लोग का पब्लिक दरबार हुआ जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी फूड जुबैर साहब हमारे बीच में आए थे। उन्होंने लोगों की सभी समस्याओं को सुना और लोगों ने जो सराहना भी की थी यहाँ पर जो काम हुआ है उन सभी बातों को यहाँ पर सुना गया। इसमें हमारे PRIs, हमारे DDC वाइस चेयरपर्सन, हमारे DDC के मेंबर, सरपंच साहिबान, बाकी आम जनता सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ पर ये कोई वन वे इंटरेक्शन नहीं था। यहाँ पर दोनों ही तरफ से बात हुई, लोगों ने अपनी बात कही, हमारे ऑफिसर्स ने उसके जवाब दिए और बैठ के हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें निकाली हैं कि इतने हमारी टाइमलाइन भी फिक्स हुई है कि इतने दिनों में ये काम हो जाएंगे और कुछ काम है जो कि हम लोगों को ऊपर टेकअप करने पड़ेंगे जिनके लिए कि हम लोग यहाँ से प्रयास भी करेंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।